I know nobody is going to watch this video, but I just wanted to let my thoughts out somewhere because this is also getting too much on me. I just feel like I'm helpless at this situation, but I shouldn't be. I should be someone who steps out of my house and goes there to protest. But like any other person, I'm also just watching things on the YouTube, on the internet, and I'm not able to do something about it. Uh, about Sonam Wangchuk sir, who is a very prominent scientist of Ladakh and जिनके ऊपर based एक movie भी है 3 Idiots जिसमें आमिर खान has played the role of this scientist. This person is on a hunger strike and today is day 18th of his hunger strike. Can you imagine not eating food, like any food, anything except water for 18 days? Just like imagine it, what he might be going through. And he's on a hunger strike not because he just felt like going on a hunger strike for no reason. He has gone on a hunger strike for the students of this nation, for the students of India. He has gone on this hunger strike so that he could represent the voice of so many people whose voices went unheard, and they just sacrificed, not even like sacrificed, they compromised on their life because of this failed education system of our country. I am talking about the NEET leak exam, something that we all just talked about when it was going very viral, but then we all just stopped talking about it. But nobody spent some minutes to think about the people who literally compromised on their lives because they could not stay in this cycle anymore, in which they work hard, take drops by drops by drops for this one exam, and then this exam gets leaked. So easily leaked. Such a big examination is just leaked, and you cannot do anything about it. Even if you worked hard, even if you have given your best in that examination, now it's not your fault. People always go in the guilt कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं करी थी. You have done your best, but now it's the system's fault. Can you imagine such a big system, for such a big exam? We cannot even guarantee a fair conduction of an exam like this NEET exam, such a big exam which is being conducted for over like 23 lakh of students, and we can still not guarantee a fair conduction. And this led to so many suicides. Which maybe we could have saved the lives of these students if this NEET exam leak did not happen. जब तक आपके ऊपर नहीं बीतती है, आपको नहीं समझ आ पाता कि दूसरे के ऊपर क्या बीत रही होगी. I can also come here and speak, but we cannot imagine what the families might have went through जब उनके बच्चों ने वो एग्ज़ाम दे के वो घर आए होंगे. पता नहीं 2-3 साल के 3-4 साल के ड्रॉपर्स होंगे जिनके फाइनेंशियल कंडीशंस भी शायद घर की अच्छी नहीं होंगी, जो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ वो दे के आए 3 मई को, और फिर पता चला 2-3 दिन बाद कि एग्ज़ाम तो लीक हो चुका है. जो आप एग्ज़ाम दे के आए हो वो कहीं पे लीक हो रखा था, एंड बच्चे उसका क्वेश्चन पेपर से देख के आए हैं वो क्वेश्चंस को, एंड उन्होंने अच्छे से अटेम्प्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से अब पूरा का पूरा एग्ज़ाम इस कंट्री में कैंसिल हो चुका है. जो आप दे के आए हो, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ, आप घर आके बहुत खुश हो, रिलीव्ड हो, आप सोच रहे हो कि साइकिल फाइनली ख़त्म हो गई, एंड आपका एग्ज़ाम लीक होने की वजह से, एजुकेशन सिस्टम के फेलियर की वजह से, हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के फेलियर की वजह से, और इन कुछ चंद लोगों की वजह से जो कि बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से आप हेल्पलेस हो जाते हो. कैन यू इमेजिन उन फैमिलीज पे क्या बीती होगी जब उनके बच्चे इतने टॉर्चर्ड फील करते होंगे, इतनी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते होंगे, एंड फिर उनके बच्चों ने कोई गलत कदम उठा लिया होगा. कैन वी इमेजिन द पेरेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर चाइल्ड ड्यू टू दिस नीट एग्जाम का लीक? Nobody has time to think about these things क्योंकि हम पे वो चीज़ नहीं बीत रही है. We are so busy with rubbish things going on in our lives that we do not want to take even one moment to think about the families who have went through such a big problem due to this NEET exam leak. And that one wise person has thought about all these students. He has raised his voice for these students जिनकी voices unheard गई, जिनके बारे में पता भी नहीं है, जो कि suicide करके आज इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं because of this NEET exam. And so many students who are still silently suffering, जिनके लिए हर एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, जैसे हमारे री-नीट का जो रिज़ल्ट है वो पास आ रहा है. बहुत ईजी नहीं इसको हम कह सकते हैं कि होता है कि दोबारा से किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना, जो कि अब दे के आगे तक अच्छा खासा हो गया था, और अब दोबारा से उसकी तैयारी करो क्योंकि री-नीट कंडक्ट होगा. दिस इज़ नॉट अ गेम गोइंग ऑन. इन बच्चों की ज़िंदगी गेम नहीं है. आई हैव ऑल्सो बीन अ बायो स्टूडेंट. आई नो वट नीट इज़ लाइक.
मैंने कभी अपने आप को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं किया, बट आई नो व्हाट प्रेशर पीपल गो थ्रू जिनको नीट देना होता है। आई नो, क्योंकि उनको MBBS की सीट बहुत प्रेशियस होती है। एंड जब हम देखते हैं कि लोग डर्टी तरीक़ों से पैसे दे के अपनी सीट रिज़र्व करवा रहे हैं, फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से जो सही लोग हैं, जो सच में वैल्यूएबल हैं, जो कि उस सीट को डिज़र्व करते हैं, उनकी सीट उनसे छिन रही है, हमारा दिल भी दुखता है। नो स्टूडेंट वॉन्ट्स दैट टू हैपन टू एनी अदर स्टूडेंट हु इज़ ऑनेस्टली स्टडिंग एंड वर्किंग हार्ड फॉर बिल्डिंग अ फ्यूचर फॉर देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज़। एंड यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम ही फेल हो जाता है। अब तो बच्चों की गलती भी नहीं है, अब तो इस सिस्टम का फेलियर है। That one person, Sonam Wangchuk, is there on a hunger strike for these students. When nobody thought about these students, when the government did not think about these students, when the national testing agency, जिनका काम ही एक एग्ज़ाम को फ्रीली और फेयरली कंडक्ट कराना है, जब वो भी इस चीज़ को नहीं सोच रहे हैं, उस एक इंसान ने सोचा जो कि शायद अपने काम पे ध्यान दे सकते थे, बट उन्होंने अपना काम सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जंतर मंतर पे दिल्ली में बैठे हुए हैं 18 दिन से बिना विदाउट ईटिंग एनी फूड। उनको क्या फ़र्क पड़ता है? उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो वापस जा सकते हैं, वो खा पी सकते हैं, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे सकते हैं। बट उन्होंने एक कदम उठाया इन बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने नहीं उठाया, हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नहीं उठाया। बहुत हंगामे हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बच्चों ने अपनी जानें भी गंवा दी, लेकिन रीनीट के बाद हम सब इस चीज़ को भूल गए हैं। एंड देयर इज़ नो सिंगल गारंटी और रीअश्योरेंस फ्रॉम द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड द गवर्नमेंट, क्योंकि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ही नहीं गया है, दैट वी कैन गारंटी कि अगले साल कुछ ऐसा काम नहीं होगा। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत फेलियर है, हमारी CBSE की चेकिंग में बहुत फेलियर आया है, बट CBSE हैज़ नॉट हेल्ड इट सेल्फ अकाउंटेबल। हमारी CBSE की चेकिंग भी इस बार बहुत गंदी हुई है। देखो, बच्चे अपनी तरफ से कुछ भी गलतियाँ करते हैं, वो सीखते हैं उससे, लेकिन जब एजुकेशन सिस्टम का एक फेलियर आपको नज़र आता है ना कि हम कितनी मेहनत कर लें बट हमें फल तो कुछ मिलेगा भी नहीं इससे, तब दिल जो दुखता है और तब जो हेल्पलेसनेस फील होती है वो स्टूडेंट्स ही फील कर सकते हैं। एंड उन स्टूडेंट के साथ अगर कोई और वो फील कर रहा है तो वो सोनम वांगचुक जी हैं। एंड हमारी गवर्नमेंट ने हद पार कर दी है ये दिखाने की कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट नो हम कैसी कंट्री में रह रहे हैं। हमें जब हमारी जो अथॉरिटी है, जो द पीपल हु आर इन पावर कैन ऑल्सो नॉट रीअश्योर अस कि वो हमारे लिए कुछ बेटरमेंट करेंगे, तो हम इस कंट्री में किस अधिकार से जी रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। आई मीन मुझे पता है कि सारे इंडियंस को इस चीज़ की आदत हो गई है कि हमारे साथ कुछ भी क्राइम होगा तो हम कुछ दिनों तक इसका मुद्दा बनाएंगे खूब बड़ा, और मीडिया भी इसको कवर करेगा, एंड उसके बाद हमारी गवर्नमेंट इन दी एंड कुछ नहीं करेगी और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इंडियंस को इस चीज़ की आदत हो गई है। बट जब एक इंसान ने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि वो 18 दिन से हंगर स्ट्राइक पे है और वो वहाँ बैठे हुए हैं एंड लोग उनको देख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब भी हमारी गवर्नमेंट के ऊपर अगर प्रेशर नहीं बन पा रहा है कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, तो हमारी गवर्नमेंट को कोई डर नहीं है। एंड एक्चुअली गवर्नमेंट के अंदर डर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको अपने वोट्स का भी डर होता, अगर उनको कुछ भी डर होता ना, तो वो कुछ करते इस बारे में। बट गवर्नमेंट के अंदर जब डर नहीं है ना, तो गवर्नमेंट से आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो इस कंट्री के लिए कुछ करेंगे, बिकॉज उनको फिर फ़र्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपनी कमाई से फ़र्क पड़ता है, उनको सिर्फ इससे फ़र्क पड़ता है कि हाँ हमारा सही चल रहा है। Nobody will care about you until उनके ऊपर एक प्रेशर होगा। नाउ ये प्रेशर क्रिएट किया भी जा रहा है बाय दिस हंगर स्ट्राइक, बाय द प्रोटेस्ट गोइंग ऑन, बट इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वी कैन इमेजिन कि द अमाउंट ऑफ टेंशन फ्री जो हमारी गवर्नमेंट के जो कुछ लोग हैं सरकार में हमारी जैसे रह रहे हैं, उन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा है अपने वोट्स को। उन्होंने पागल समझ रखा है पूरी की पूरी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को। उनको पता है कि वो सेफ जोन में है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब हमारी गवर्नमेंट इतने गंदे थॉट्स के साथ इस कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम देम? वी कैन नॉट। एंड एक्चुअली नाउ पीपल हैव स्टॉप टू केयर। वी आर द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। हमारा पूरा राइट है इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगने का, बट कोई मांगना चाहता ही नहीं है। हम इन गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर हावी होना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर हम सारे लोग मिल जाएं तो वी नो कि हमारी क्या स्ट्रेंथ होगी और हमारे सामने गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, बट वी डू नॉट वांट टू डू इट। हम आलसी हैं, हमारी गवर्नमेंट उससे भी ज़्यादा आलसी है भाई, क्योंकि उनको तो वैसे ही पैसा मिल रहा है ना, उनका तो और भी बढ़िया चल रहा है हमसे। हम तो फिर भी मिडिल क्लास लोग हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं साइलेंटली। हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, बच्चे सफ़र कर रहे हैं। द यूथ इज़ सफरिंग, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ द फ्यूचर ऑफ टुमारो, दैट इज़ सफरिंग टुडे। And good people who are not even in the politics are coming up and they are taking stand for these students. But the people who are in power, who are in the politics, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस कंट्री का ध्यान रखना, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। वो ही कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बाकी सब कर रहे हैं। तो इस कंट्री का क्या फ्यूचर है?